First topic today, which I'm going to talk about, is the curriculum restructuring in consonance with NAP 2020. And before I talk about the curriculum restructuring, I will talk about first the NAP 2020. Uh, you might have the idea about what NAP 2020 is and how what changes it is going to bring. But I would just like to introduce the what NAP 2020 talks about. And first of all, before what it talks about, before that, it is important why after 77 years of uh, independence, why with such a glorified education system in place, still we are facing the challenge of coming up a foolproof education system. So to set the pace, I would divert your attention or try to focus your attention on what we were, what went wrong, and what is the need, and why it is the need, and now how it is happening. So all the three aspects, just to give you an idea about these things. So the first and the foremost thing is to talk about the past from where our education system started. When the entire globe was struggling for a education system, we had a formal setup of education system in place. During that time, during the 300 BC, 300 years almost ago, we had the well defined, well structured universities. And we all know about that, about Nalanda, Takshila, which are being revived again. So, that time, these universities were in place with a good infrastructure, with a good, and not only universities teaching only Vedas or arts or Sanskrit that time, but they were teaching all. It was a multidisciplinary institute, multidisciplinary institutions. Yeah, Dr. Tripathi, you want to add something? Yeah, ma'am. If we go to your previous slide, with due regards to Swami Vivekanand and his thought about education, maybe I just want to ask whether that is it applicable for the higher education? Exactly, sir. Why not? Why not? Why Because this question the, came to your because mind? this question is coming to my mind because that in my experience we are making machines, not human beings actually. That we have That's more focus on the knowledge and skill, and sometimes or many times we that overlook over that development of that attitude part, and that we are not sure whether as a teachers or educators we are supposed to look at the attitude part of you, sir. You are students. covering my next few slides. No, That's ma'am. Actually, that is my query. That whether it is that. Yes, that is what actually we at the present times trying to figure it out. See, you are very right, because see actually in every era the requirement of education for whom, why, and how changes, right? During the ancient times, the education meant only the knowledge dissemination, that some knowledge should be given, right? उस समय education was कि बस आप सिर्फ समझिए, पढ़िए, और ये था, और यही इंडिपेंडेंस के टाइम था. फिर एजुकेशन हुआ कि ओके, नॉलेज के साथ नहीं, स्किल भी होनी चाहिए, ये सब मतलब ये होना चाहिए. फिर हुआ ज्यादा जब ग्लोबली कंप्यूटर आईटी, तो बस हम वही, एज यू आर सेइंग, के वी वर मेकिंग ओनली द रोबोट्स और द ह्यूमन बीइंग्स लाइक रोबोट, जो सिर्फ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं. अब जो रिक्वायरमेंट, अब द प्रेजेंट इरा का रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एटीट्यूड. See, when we talk about the education, any education system basically is built on three major parameters. One is knowledge, other is skill, and third is attitude. Right? So knowledge, now there is no dearth of knowledge. पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, नॉलेज वॉज लिमिटेड टू ईदर. अब तो बुक्स में तो थी, उससे पहले तो नॉलेज, जब राइटिंग नहीं थी तो सिर्फ वर्बल नॉलेज थी, जो
पीढ़ियों से चलते आए, श्लोक चलते आए, नॉलेज चलती आई, इंफॉर्मेशन चलती आई, वही सोर्स था नॉलेज का, वो पास ऑन करना था। फिर जब बुक्स और राइटिंग और हमारी देवनागरी ये सब हुआ, फिर नॉलेज का सोर्स था ये बुक्स और जो मटेरियल, पर उनकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी लिमिटेड थी, कुछ लोगों तक थी, कुछ की नहीं थी। अब क्या है, अब हर बच्चे के पास नॉलेज का बैंक उसके हाथ में है। जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उससे ज्यादा द स्टूडेंट हैज इन हिज लैपटॉप। जो मैं अभी पढ़ा आपको 5 दिन से हम सब कर रहे हैं, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपके पास नेट पे अवेलेबल है। सो नॉलेज की तो अब कोई कमी नहीं है। आप लाइब्रेरी छोड़ो, घर में बैठे हुए, बिस्तर में बैठे हुए आपके पास नॉलेज की इतनी गंगा है, जहां से मर्जी डुबकी लगाओ। फिर आया कि स्किल होना चाहिए, सिर्फ हमें वो बुद्धू आदमी नहीं बनाने हैं कि जिनको, या मतलब नॉट टू यूज दीज वर्ड, सॉरी, मतलब ऐसे हमें नहीं चाहिए कि जो सिर्फ नॉलेज नॉलेज हो लेकिन उनके हाथ में स्किल नहीं है, हुनर नहीं है। स्किल मीन्स उन्हें हुनर नहीं है। और फिर हुआ कि हुनर की वैल्यू है। आप ये देखिए कि फॉरेन कंट्रीज में एक सिर्फ मेजन या एक प्लम्बर एक टीचर से ज्यादा कमा लेता है यूएसए में, तो क्योंकि उसका 1 आवर $100, क्योंकि उसको ये नहीं बताना है कि पानी का प्रेशर कितना आ रहा है, उसमें कितने चूड़ियां लगनी है, उसके डायमेंशन क्या है, उसका फ्लो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है। ही इज नॉट बॉदर्ड। हिज जॉब इज कि जो चीज की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। सो उसके लिए स्किल चाहिए, राइट? उसके लिए आपको नहीं चाहिए कि इफ आई हैव टू हैंडल स्टूडेंट्स इन माय क्लास, आई मे बी ए पीएचडी और एम टेक, बट मे बी अ बीटेक स्टूडेंट टीचर विल बी मच बेटर टू cater to the problems of the student. So skill ज्यादा था। अब क्या हो गया है, अब हमारे को बात करनी है एटीट्यूड की। पहले होता था कि एटीट्यूड वाज ओनली मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, जो बच्चा घर से सीखेगा, माँ बाप सिखाएंगे। कॉलेज में या स्कूल में हम टीचर्स की जिम्मेवारी थी कि हम सिर्फ वी टॉक अबाउट ओनली द नॉलेज पार्ट। बट नाउ नो, बिकॉज यू राइटली सेड दैट वी आर नॉट, वी हैव नॉट टू, अभी एक जो है ये सुप्रीम कोर्ट की भी सेइंग आई है, मेरे पास है वो कि नहीं है, या सी सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो ऑब्जर्व किया जो आप कह रहे हैं कि टुडेज एजुकेशन हैज फेल्ड टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर, एंड नो डाउट वी आर इंक्रीजिंग द लिटरेसी लेवल। अभी तक पैरामीटर वाज लिटरेसी लेवल, केरला 99% हो गया, हरियाणा इतना है, पंजाब इतना है, महाराष्ट्र इतना है, बट वी आर इंक्रीजिंग द लिटरेसी लेवल, बट वी आर डिक्लाइन इन द ह्यूमन वैल्यूज इन द सोसाइटी। So that's what I was coming to this point, that अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स दे रहा है, राइट, बट वेल एकेडमिकली एजुकेटेड। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। आप किसको हाईली एजुकेटेड समझते हैं? अगर मैं कहूँ कि आई एम अ पीएचडी विद 25 years of experience, and a person standing with me maybe mtech, say with another 20 experience, another maybe bcom or ba, हम किसको एजुकेटेड समझते हैं? बताइए त्रिपाठी सर। Ma'am, in my view, the formal education has a less value, and informal development of the person, that is more valuable for me. ओके ओके, योर व्यू पॉइंट, एनीबडी एल्स? आई कैन सी 126 पार्टिसिपेंट्स, और लोग भी शेयर कर सकते हैं उनका व्यू पॉइंट। whom do you consider Degrees, educated person? Yeah, degree, Upesh. degrees will not define the education. Degrees just like a paperwork, and the experiences and the human values and other things like understanding of things, awareness is called as educated person. Very right. So, very right. So, Mr. Mareswaran is also saying one who knows to treat the situation. Exact. लेकिन हमारे सिस्टम में अभी तक क्या था? Academics was a parameter to decide the education. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, क्या डिग्री ली है, क्या हमारे मार्क्स हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ पढ़ाया है, ठीक है, उसको वी वर कंसीडरिंग। सो अ बेटर एजुकेटेड पर्सन was considered, sorry, better academic person was considered as a better educated person,
जनरल अब हम लोग क्योंकि विद एक्सपीरियंस है तो हम ये बात कर रहे हैं। या धर्मपाल सिंह जी, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Ma'am, in my opinion, educated person is the person who can apply the knowledge what he has acquired with keeping all the moral and ethical values intact. या वेरी राइट सर। अभी मैं 3-4 डेज पहले न्यूज़पेपर में आ रखा था या कहीं पे डिस्कशन थी, सम प्रोफेसर्स, देयर वाज अ प्रोफेसर या मेडिकल प्रोफेसर था, कोई प्रोफेसर था, इसी पे डिस्कशन थी कि ही वाज अ पर्सन विद अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, वेरी गुड एजुकेशन एक्सपीरियंस, बट उसको जो है वाइफ बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पकड़ा गया उसको या वो किया गया। सो दैट्स वी वर वही पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि ही इज एजुकेटेड, ही इज एवरीथिंग, ही इज एकेडमिक, मतलब उसका डिग्री है, उसका नाम है, उसका कॉलेज है, लेकिन ही इज नॉट अ गुड, इज नॉट ए एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि वो ना तो उसमें ह्यूमन वैल्यूज की वो कुछ दिखा पा रहा है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर इसलिए क्वेश्चन उठा था, नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस, क्वेश्चन वाज कि ही वाज ए ब्राह्मीण और ही वाज ही कुछ उसने रिमार्क्स दिए थे। एनीवे मतलब बट द मेन थिंग इज व्हाट आई वांट एज यू पीपल आर सेइंग कि हम लोग एजुकेशन मींस कि अगर एक बंदा एकेडमिकली स्ट्रांग है बट उसके साथ वो कुछ ह्यूमन वैल्यूज भी शो कर रहा है, सड़क पे चलते हुए कागज इधर उधर नहीं फेंक रहा है, उसको अपने इंडिया अपनी सोसाइटी के लिए क्या उसकी इनपुट्स वो क्या कर रहा है। सो इट इज एन ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ द पर्सन in which the knowledge plays an important role, no doubt, but the other things, how to deal with these situations, how to deal with the interpersonal skills, how to present himself in the society, how to behave, right, how to deal with the inferiors, superiors or peers, ये सब चीजें जो है हमारी एजुकेशन पे है। बट एवरी टाइम एज आई सेड कि एजुकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो कई कई बार चेंज होता जाता है। जैसे इफ दिस सी दिस इज द आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नाउ ऑफ पास्ट, जो हो गया चलो हो गया, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अप्रूव किया, अफगानीज आए, जो भी आए, सिस्टम खत्म हुआ, बट नाउ at the independence, this is the data of 1952, the pathetic condition जो उस समय एजुकेशन सिस्टम की थी कि पूरे देश में सिर्फ 5,000 स्कूल हैं, 12,500 मिडिल स्कूल थे, 1.5-2 लाख प्राइमरी स्कूल थे। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस था, दैट वाज टू मेक अ पर्सन लिटरेट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड और मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग कि उस समय लिटरेसी का मतलब क्या था। आप बताइए कि जब इंडिपेंडेंस के बाद किसको लिटरेट माना जाता था? नाम लिख पाना, सिग्नेचर कर पाना। यस, जो सिर्फ अपना सिग्नेचर कर पाए या अपना नाम पढ़ पाए वही लिटरेट था। सो एट दैट टाइम जो एजुकेशन सिस्टम या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या जो भी एफर्ट्स थे, उस समय कंट्री का एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड टू लिटरेट मोर एंड मोर, तो उस समय सिर्फ नॉलेज पार्ट था। और फिर जब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि लिटरेसी के लिए स्कूल खोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, फिर देखा गया कि एडल्ट एजुकेशन कितनी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि उस समय नए बच्चों को या स्कूल्स आप खोल रहे हो, लिटरेसी बढ़ा रहे हो, स्कूल एजुकेशन बढ़ा रहे हो, देन इट वाज देखा 1968 में जब फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई, देन इट वाज सीन कि जो मेजर लॉट ऑफ आवर पॉपुलेशन है दैट वाज adults, and they were totally illiterate, and they were responsible to move the society आगे को। सो उस समय एजुकेशन का फोकस था कि आप एडल्ट एजुकेशन, ये एजुकेशन सब करिए। फिर 70s में जब थोड़ा हुआ तो स्किल आने लगा, तब हमारे कंट्री की जो पॉलिसी थी, दे स्टार्टेड डेवलपिंग दी ये आईटीआईज, उसी समय खुले सारे 70s 80s में, आईटीआई खोलो, बी वोकेशनल स्किल्स को स्टार्ट करो, और टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत फोकस आने लगा। उससे पहले तो हैंडफुल ऑफ 4 आईआईटीज एंड 6-7 एनआईटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स गिन के 5-7, कुछ नहीं होता था। सो एज व्हाट आई एम सेइंग इज कि टाइम एंड अगेन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एजुकेशन इज एंड what is the requirement of the day, that keeps on changing. So now if you see कि 1986 में हमारी पिछली पॉलिसी आई,
और 2020 में हमारी अब पॉलिसी आ रही है, एंड देर इज अ गैप ऑफ 34 ईयर्स. नाउ यू टेल मी कि इस 34 ईयर्स में एजुकेशन कहाँ गई है, लिटरेसी कहाँ गई है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन कहाँ है. Those who are more than of 34 or 40 years of age, they can figure it out कि कितना चेंज आया है. इन्हीं 34 सालों में इंटरनेट आया, इन्हीं 34 सालों में कंप्यूटर इतना ज्यादा हमारी लाइफ में बिल्कुल ही प्रोक्लेट हुआ. इन्हीं 34 ईयर्स में कि ग्लोबलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ी. पहले होता था कि एक बच्चा जो है ओके शिमला में पैदा हुआ, शिमला में स्कूलिंग हुई, हद से हद ग्रेजुएशन करने चंडीगढ़ या दिल्ली तक चला जाएगा, नौकरी करने गुड़गांव या बेंगलोर, अब हैदराबाद भी है. लेकिन अब क्या हो रहा है, इवन अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ कुल्लू के किसी कोने में पढ़ रहा है, वो बच्चा भी इज ड्रीमिंग ऑफ, इज कैपेबल ऑफ, and is thinking of taking the education from a, say, University of California or University of Melbourne or UK. So education has totally gone beyond the boundaries. सोच बदल गई, रिक्वायरमेंट बदल गया, सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया. तभी जो इट वाज फेल्ट कि जो हम अभी हैं, हम अभी क्या थे और क्या रिक्वायरमेंट है, और अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसके बेसिस पे अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज डिसाइडेड, जिसमें जो फोकस है, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे हैं, वो सिर्फ नॉलेज डिसिमिनेशन पे नहीं है, वो एटीट्यूड जो मैं पहले बात कर रही थी कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, अब एटीट्यूड पे है. आप बच्चे को कहो कि आपने ऑनलाइन क्लास लगानी है, आप ही का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, 250 लोग रजिस्टर्ड हैं. अब उन 250 में से कितने लोग हैं जो सिर्फ रजिस्टर करके ऑन करके बाकी काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बाकी काम करते करते भी नहीं, हम अगर ये इस एफडीपी में अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो मैं उसको ध्यान दे लूं, और कितने लोग होंगे कि बाकी इस काम सब छोड़ के सिर्फ इसको कर रहे होंगे. दैट विल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड. और हम तो एक्सपीरियंस्ड हैं, हम वी नो आवर प्लस एंड माइनसेस, वी नो आवर प्रेफरेंसेस, सो वी कैन टेक द डिसीजन. और बच्चों का आप सोचिए, जो 18-19 साल का बच्चा है, उसको हम कहें कि ये लो भैया, क्लास में आपने कहा ये वीडियो है यूट्यूब पे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या इस टॉपिक पे है, ये केस स्टडी आप करके आइएगा, पढ़ के आइएगा. इफ द एटीट्यूड इज प्रॉपर, तो बच्चा यूट्यूब खोलेगा, उसी लिंक पे खोलेगा और पढ़ेगा. और अगर थोड़ा बहुत है तो बच्चा पहले अच्छा कुछ और देख लेता हूँ क्या आया है, फिर जाता हूँ उस पे. और तीसरा तो कहेगा कि छोड़ो क्या करना है, जो साथ वाले को कहेगा जो तू पढ़े मुझे बताती हूँ. This is the difference, and this is what we are looking and we are struggling with it, not only with the school, college, अपने घर के बच्चों का भी, right? I see many hands raised out. I like that. Yes, Dharampal Singh ji. No, ma'am, I have not raised. Sorry. अच्छा, sorry. Yeah, त्रिपाठी जी पहले के ही raised हैं. Yeah, ma'am, I have one query here is Yes, ma'am. that एक बच्चे का एटीट्यूड ठीक करना किसका काम है, उसके पेरेंट्स का या टीचर्स का? दोनों का. अब वही चीज निकाल के बाहर आनी है. मुझे पता है, जब मैं जब जैसे हेड थिया थे, तो मैं जब मेंटर, तब तो मैं ये एनईपी नहीं आई थी, 10 years बैक हमने मेंटरिंग शुरू की थी, तो मेरे पास जो यंग फैकल्टी है ना, वो यही आती थी, मैडम माँ बाप अपने आप देखेंगे, हमारे पास 18 साल बाद पकी हुई चीज आ रही है, हम उसको क्या चेंज करें. वो कुछ लेवल तक ठीक होता है कि जब तक टीचर के पास बच्चा पहुंचता है, मोस्ट ऑफ हिज वैल्यूज, मोस्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी बन चुकी होती है. हम एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं. सो आई वोंट से कि बिल्कुल ही घर से ऐसे बच्चे, पेरेंट्स कुछ ना करें, बट आई वोंट से नाउ कि एजुकेशन का काम या कॉलेज का काम सिर्फ जो है वो पढ़ाना है. जो अभी आप ही यूज कर रहे थे कि वी आर नो लॉन्गर have to fulfill the role of as a teacher, but we have to be an educator, a facilitator, right? So वो टीचर जो था ना कि सिर्फ टीच करना है और पढ़ो और जाओ, बाकी माँ बाप से सीखो या सोसाइटी सिखाएगी, वो एस्पेक्ट थोड़ा सा चेंज होना है.
क्योंकि और सिर्फ हम तो चलो क्योंकि हायर एजुकेशन में आ रहा है, बट एनईपी तो बात कर रही है स्कूल की भी ना, उनके पास तो बच्चा नर्सरी से आ जाता है। और इफ यू सी कि 8 घंटे, चलो स्कूल में 6 घंटे, और 5 साल से लेकर 25 साल तक बच्चा एजुकेशन में रहता है, चाहे वो स्कूल में रहे, चाहे वो डिग्री कॉलेज या टेक्निकल जो भी है। तो उस इसलिए इट हैज बीन फेल्ड कि जो ये मोर वैल्यूज डेवलप करना है या एटीट्यूड चेंज करना है, वो सिर्फ सोसाइटी और घर की नहीं होनी चाहिए बात, वो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम की भी होनी चाहिए। स्कूल आई मीन कॉलेज और स्कूल और वो। सो यही एटीट्यूड चेंज करना है हमको कि दिस development of the not only the cognitive skills but the overall development that may be in terms of the understanding, in terms of behaving, in terms of those affective domain जो आपने उस दिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में करी होगी बात, कि वी हैव कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। सो कॉग्निटिव और साइकोमोटर को तो हम अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान कर रहे हैं, लेकिन अफेक्टिव डोमेन को हम अभी तक मान के चलते हैं कि ये फैमिली और अलग से, मतलब दैट वी डू नॉट कंसीडर एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, राइट? सो दैट we have to talk about. So coming back to a bit of I talked about past, okay, I talked about now present education system. आई वोंट से कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं या जिससे हम प्रोडक्ट हैं, मुझे भी 30 years हो गए अपनी डिग्री किए हुए, सो आई वोंट से कि जो अभी तक था वो बिल्कुल खराब था या अभी खराब है, और हम कुछ नया एनईपी जो है एकदम से कुछ बहुत नया लेके आ जाएगी और सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, वो नहीं है। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस, और जो दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज, first thing is the strict boundaries of our domains, disciplines. I not only boundaries, I call them watertight compartments. As I say कि आपने बच्चे ने 10th तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद you start कि okay, you choose your own path now. You want to choose science, you want to take arts, you want to take commerce. फिर बच्चे को एक रास्ता चुनना है, अच्छा मैंने साइंस लेना है, ओके लर्न ओनली साइंस। फिर साइंस के बाद फिर एक और कंपार्टमेंट चुनना है कि यू वांट टू चूज मेडिकल और नॉन मेडिकल और व्हाट, ओके आई चूज नॉन मेडिकल, सो आई बाउंड माई सेल्फ टू नॉन मेडिकल। Again, when you choose non-medical, you are going for engineering. Again, choose another one. You want to go for computer, you want to go electronics, mechanical, civil. Okay, I choose electronics. I choose, or I was bound to choose, or I didn't have any choice, or my parents wanted to me to become a computer engineer, so I chose another concept. So, and once I choose to become a computer engineer, चाहे मर्जी से आया हूँ, चाहे माँ बाप चाहते हैं बनाना, but I am supposed and forced to move on that track only. वही पढ़ना है, वही मास्टर्स करनी है, वही पीएचडी करनी है, वही नौकरी करनी है, वही सब कुछ करना है, वही रिटायर होना है। कहीं गलती से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानने का है तो नॉट दैट, यू कैन लर्न, पढ़ लो अलग से। मेरा पैशन म्यूजिक पे है, नो, आई एम ए गुड स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ हमारे कंट्री में अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप किसी भी हालत में अच्छे पढ़ाई वाले नहीं हो सकते हैं, एंड वी हैव द एग्जांपल्स इन आवर हैंड्स। आप सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि दोनों चीजें इन हैंड टू हैंड नहीं जा सकती हैं, राइट? सो देर आर दीज इश्यूज कि डिसिप्लिनरी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत रिजिड है, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती हैं प्रेजेंट सिस्टम में, राइट? अनदर थिंग इज, अगर मैं गवर्नेंस और उसकी बात करूं तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल भी कितनी बार ये बात हुई कि एफिलिएटेड कॉलेजेस स्पेशली प्रॉब्लम आती है। हम जितना भी करिकुलम की बात करें, जितनी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कितने टूल्स भी कल आपने करे होंगे, जो भी है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कहीं पे स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनोमस है, वो ठीक है, कहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, कहीं डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। सो इतनी ज्यादा सेग्रीगेशन है और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो
प्रॉपर जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में फॉर द एंटायर लॉट, वो नहीं है। या धर्मपाल सिंह जी, आपका हाथ गलती से बार बार रेज हो रहा है कि आप कर रहे हैं? मैम इस बार मैं उठाया हूँ, हाथ उठाया हूँ। हाँ बताएं सर। Ma'am, if you permit, I have some confusion. श्योर सर, प्लीज। Ma'am, as we all agree that responsibility of teacher and parent both to uh, inculcate the good ethics and moral value in students. But ma'am, most of the documents and policies, say NEP and all those, talk about this how to make the student better students, better learners. But as far as when we came across the document who we follow for recruitment of teachers, so I never found any point where there is we consider these values in teachers, and rather it is a reverse. I mean, when we are going to recruit a teacher, we are often looking for how many papers, how many projects, what's your the paper value. So I've दैट never इज वेरी found. So if we all agree that if teacher itself is not having any such traits inside, how we can expect that he or she will be going to deliver the same thing in the students? So ओके। is there any document or any point in NAP that's take care of this point? मीन्स यू वांट टू क्वांटिफाई दोज थिंग्स आल्सो कि टीचर ने ह्यूमन वैल्यूज का पेपर पास किया हुआ हो, या No, ma'am. No, टीचर ma'am. ने No, ma'am. I mean, एथिक्स। giving the priorities like based on the say most of the thing be quantified in such a manner because अगर कोई पेपर लिखा है doesn't mean वही लिखा है, लेकिन still we look for the number of papers. किसी का प्रोजेक्ट है तो वही है ना? Say for promotion we can ये go for. देखिए, मैं आपसे बिल्कुल अलग से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो या हम बच्चे की प्लेसमेंट भी करते हैं, जब जी बच्चा नौकरी के लिए जाता है या हम फैकल्टी को भी रिक्रूट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो अभी भी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, जी चाहे वो रिसर्च के रूप में है, चाहे वो पेपर प्रोजेक्ट व्हाटसोएवर यू से, जी राइट? तो जो जी आप कह रहे हैं कि जो ये एटीट्यूड या ह्यूमन वैल्यूज या जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। जी मैम, we ये never जो look है ना, and then हम उसको हाँ चेक कैसे कर रहे हैं? आप मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती हूँ, तो जो पैरामीटर्स हैं नौकरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट या वो है, उसमें आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैरामीटर या ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे चेक कर सकें कि मेरे अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं कि नहीं है, या मेरे अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं है। मतलब यही हो रही है ना सर बात? हाँ। और दूसरा मैं इवन अगर मैं इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकता तो मैं प्रमोशन में तो आई नो माय फैकल्टीज इंटरनल फैकल्टीज जो प्रमोशन है एंड बट व्हाट माय कंसर्न इज दैट व्हाट आई ऑफन फाउंड इज दैट इज रिवर्स इन आवर सिस्टम। सी देखिए, मैं सर हाँ, मतलब कुछ लेवल तक मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन अगर अब मुझे नहीं पता आप किस कॉलेज से हैं सर? मैं एनआईटी रायपुर से हूँ मैं। हाँ, तो जो आपकी अप्रेजल है सर, हम्म। जो आपकी फैकल्टी की अप्रेजल है, उसके पैरामीटर्स आपके क्या सिर्फ रिसर्च और पेपर और पब्लिकेशंस हैं? हाँ मैम, फीडबैक में भी मोस्टली जैसे फीडबैक सिस्टम है बट मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो एकेडमिक से रिलेटेड है और कई बार तो ज़्यादातर टाइम पे वो देखा भी नहीं जाता जैसा कि वो प्रैक्टिस ये में। वो एक अलग वो है। और क्या आप वो 360 डिग्री फॉर्मेट भर रहे हैं क्या, जो आपके नहीं। जो? हाँ, तो वो सर थोड़ा सा अभी जो चेंजेस हुए हैं, अब मैं अपने कॉलेज की बात करूं या जी जो 60 डिग्री जो एआईसीटी भी भरवा रहा है, उसमें पैरामीटर्स जरूर ये हैं कि कितनी पब्लिकेशन ली, कितनी क्लासें ली, कितना आपका रिसर्च है, कितना रिजल्ट है, सीओ अटेनमेंट है, वो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि वो दैट इज पार्ट ऑफ अवर जॉब। उसी के बेसिस पे हमें सैलरी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल जो बाकी का अप्रेजल है ना सर, हमारा वाला मैं बताऊं या 360, उसमें पता है क्या पैरामीटर्स हैं कि इस टीचर के इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, ये डिपार्टमेंट में कैसे बिहेव कर रहे हैं, इनका एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, इनकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट में क्या और है, इनकी स्टूडेंट्स के साथ क्या रेपो है, ये पैरामीटर्स हैं।
जो ये हमारी अभी के अप्रेजल में है, और जो AICTE ने 360 डिग्री भर रहे हैं आप, उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बट ये जरूर आप जो कह रहे हैं कि कोई एब्सोल्यूट नंबरिंग वी आर नॉट गिविंग टू कि टीचर के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि नहीं है, और वो एब्सोल्यूट हो भी नहीं सकते, वो नहीं, आपके मैं एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ने आपने बताया वो अभी तक मेरे यहाँ तो वो भी पैरामीटर शायद नहीं है, मेरी जहां वो तक होने जानकारी। चाहिए, जी जी, वो वही बोल रहा हूँ मैं, होने चाहिए, होने चाहिए। वो होने चाहिए, क्योंकि जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग है और जो हम एज ए प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को तो काउंट कर रहे हैं। और वही वो जैसे सर ने भी, त्रिपाठी सर ने भी बोला कि हमारा ज्यादा फोकस अभी भी सिर्फ इसी पे होता है कि मेरे कितने पेपर है, मैंने कितना रिजल्ट है मेरा, ये है क्योंकि टोटल हमारी, क्योंकि वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है और वो पैरामीटर्स क्वांटिफाइड है, वो पैरामीटर्स टोटली मेंशन्ड है। लेकिन जो बाकी की ग्रोथ है वो, उसको फिलहाल फिलहाल NAP भी ऐसा अभी कुछ नहीं कह रही है कि आपको टीचर की के लिए या किसी के लिए या आपकी प्रमोशन का बेसिस जो है वो ये होना चाहिए। बट हमारे यहाँ अभी भी अप्रेजल में ये सारे पैरामीटर्स हैं। और मैं ही थी जब मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि मुझे जिस चीज की मैं काम कर रही हूँ, मुझे जिसकी नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, वो मेरे अप्रेजल का पार्ट इतना कम क्यों है। लेकिन नाउ आई कैन रियलाइज कि वो पैरामीटर एक है, बट मेजर पैरामीटर यही होना चाहिए कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अपने दायित्व को, काम को और इन बाकी चीजों को कैसे निभा रही हूँ। सो ये अप्रेजल का पार्ट होना चाहिए। मैम और मैं एक और, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, मेरा ये कंसर्न ज़्यादा इसलिए है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पर्टिकुलरली जो बहुत अच्छे तक, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ टीचर्स जो बहुत ही अच्छे होते हैं एकेडमिक में, रिसर्च में, when it comes to a group work, a group task, यस so there is a huge problem. I mean, they never यस, ready to आई एग्री, cooperate and collaborate. आई एग्री। वो कुछ लोग तो वैसे सिंगल मैन आर्मी होते हैं, वो उनकी मतलब वैसी नेचर होती है, आप कर नहीं सकते हो। बट क्योंकि हमारे यहाँ नंबर सिस्टम का खेल है, कितने कितने Yes, रिसर्च yes. पेपर में कौन फर्स्ट ऑथर है उसकी वेटेज अलग है, कौन PhD सुपरवाइजर 1 है उसकी वेटेज अलग है, रिसर्च प्रोजेक्ट PI कौन है, उसी चक्कर में सर वही सब नंबरों के जी खेल जी जी में आदमी जी, की जो ह्यूमन वैल्यूज है वो पीछे हो जाती है। वही हम कंसर्न था अभी, मेरा मैम, थैंक यू। यस, आई जी आई टोटली एग्री विद यू। पर एक चीज इसके साथ ही मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, NP इज टॉकिंग अबाउट दी टीचर्स की, अभी वो पूरा फुल अलग से डॉक्यूमेंट नहीं आया है, बट NP के मेन डॉक्यूमेंट में वो है कि द प्रॉपर ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी गिवन टू टीचर्स फॉर एजुकेशन, वो अलग पार्ट हो गया। द मेन पार्ट इज कि जो प्रमोशन, जो इंसेंटिव्स, जो रिकॉग्निशन अभी टाइम बाउंड है, कि मेरे अभी 5 साल नहीं हुए और मेरे आगे 5 लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रमोट नहीं हो रहे क्योंकि उनकी पब्लिकेशन नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आई हैव टू वेट बिकॉज आई एम बिहाइंड देम इन दी सीनियोरिटी। सो NP इज सेइंग कि किसी भी टीचर के प्रमोशन या इंसेंटिव्स या जो भी उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, दैट विल बी नाउ ओनली डिपेंडेंट अपॉन आपकी काम कैसा है, आपकी अचीवमेंट क्या है, प्रोफेशनली पर्सनली आप क्या कर रहे हो, आपके अप्रेजल क्या है, उसके बेसिस पे होगा। ये नहीं कि क्योंकि आपके आगे वाले 5 नहीं बढ़े आगे तो आप भी वहीं रुके हैं, नहीं बढ़े आगे, उनकी मर्जी, आप अपना चलिए। सो NP में ये पूरा एक पैराग्राफ इस पे है, पूरा सेक्शन है। बट जैसे NP के धीरे धीरे हर सेक्शन पे दे आर कमिंग अप विद द एंटायर डॉक्यूमेंट, वो अभी वहां तक नहीं आया है। सो इन द कमिंग टाइम्स दिस विल मैटर। और अगर आपके यहाँ पे अप्रेजल में ये नहीं है, यू शुड से अबाउट दिस। अगर आपको चाहिए मैं आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी कि आपके अप्रेजल, टीचर के अप्रेजल में ये पॉइंट्स जरूर आने चाहिए, क्योंकि एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ डिपार्टमेंट, वही होता है ना कि अकेला चना तो भाड़ में छोड़ो, एक और कहावत होती है कि अकेले से तो दाल भी नहीं गलती और इकट्ठे होके पत्थर भी गल जाते हैं। तो जी मैम। टीम वर्क और इंटरपर्सनल स्किल्स ये ज्यादा मैटर करते हैं पर्सनल ग्रोथ के अलावा। सो ये अप्रेजल का पार्ट होना चाहिए। और 360 वाले में जो AICTE में आई एम 100% श्योर वो है, और हमारे यहाँ तो आई एम 200, क्योंकि हमारी उसी के बेसिस पे होती है कि जी आपका अपने पीयर्स के साथ कैसे है, तो ये चीजें आनी चाहिए।
बाकी यस, क्या आप ये कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के टाइम हम उन पैरामीटर्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं? यस, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी तरह से थोड़ा बहुत इनबिल्ट हो जाता है कि पेपर लिखे हैं तो प्लेगरिज्म नहीं करी है, प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट पॉइंट्स हैं बट डायरेक्ट नहीं है। दैट आई एग्री। वो मैम थोड़ा सा इस तरह का है कि जो लोग मतलब पीपल गेट डीमोटिवेटेड कि अल्टीमेटली हाँ, वो जो यस। हमारे पॉइंट्स और वो उस तरह चले जाते हैं, जो लोग वाकई उस चीज को वैल्यू को रखना चाहते हैं वो वो नहीं रख सर पाते हैं। यही अब वो सर जो ऊपर बैठे हैं उनकी भी ह्यूमन वैल्यूज वहीं दिख जाती है ना, किस पॉइंट पे वो अब ये तो एक विशियस सर्कल है सर। शायद जी हम जी जब उस जी, पोजीशन पे होंगे हम और भी बुरा बिहेव वो सही करेंगे बात है भी। मैम, सही बात, आई एग्री मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस इलाबोरेटिव एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। या डॉक्टर त्रिपाठी, योर व्यू पॉइंट? Ma'am, I would like to add here is that we were discussing on the attitude matter, and here I am not speaking as a like as a teacher. Rather than I will first speak like a parent. जब भी हम अपने बच्चे को एडमिट कर रहे हैं प्री प्राइमरी में, KG 1 में या क्लास 1 में, जब हम एडमिट कर रहे हैं, मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे आर लेस कंसर्न कि उसके स्कूल में क्या चल रहा है। और दूसरा है कि अच्छा, मैं सोच रही थी किसी और का बच्चा है तो आपके साथ। yeah, so he is asking me to shift to some other place. नो इशू। Yeah, so मैम एक्चुअली अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, मतलब so many of the parents they are like अगर हम प्राइवेट अगर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, मे बी द पेरेंट्स दे आर इनडिफरेंट ऑलमोस्ट कि मेरे बच्चे का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो पेरेंट्स थोड़े से सिंसियर हैं, मैं अपनी अपनी ही बात कर रहा हूँ, दे विल गो टू द टीचर्स एंड दे विल आस्क कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि और दैट वी आर बिहाइंड द स्कूल, की स्कूल ने बुक ठीक से दी या नोटबुक ठीक से दिया, होमवर्क किया नहीं किया। हमारा प्राइमरी कंसर्न मतलब मेजर फोकस उसके एकेडमिक डेवलपमेंट पे होता है, और एटीट्यूड शायद कहीं इधर उधर होता है। और प्रॉब्ली सम ऑफ द टीचर्स जब जो स्कूल डेज की बात करते हैं, इफ दे आर वेरी वेरी केयरफुल, सो दे कीप ए वॉच ऑन द स्टूडेंट्स कि भाई आपका एटीट्यूड ठीक डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वंस द स्टूडेंट इज कमिंग टू कॉलेज, कॉलेज में अगर आ जाता है, तो कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनको समझ में आ जाती है बात कि ये बच्चा बहुत ही डेवलप हो चुका है और उसको आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, और आप करेंगे तो आप फंसेंगे मतलब इन द सेंस दैट यू विल बी इन प्रॉब्लम। And I have some experiences, that if you try to correct the attitude part of the student, their parents will be behind you and they will defend to the kid, they वो बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा सही है and he does not need any correction। ये कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। तो मेरी समझ से जो एटीट्यूड पार्ट है वो प्री प्राइमरी 1 से लेके आपके PhD लेवल तक इट गोट्स गेट्स ऑलमोस्ट अननोटिस्ड। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर एंड आई वांट योर कमेंट ऑन इट मैम। सर देखिए, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ कि जब हमारे पास बच्चा आता है एट द एज ऑफ 18, 17 और 18 हायर एजुकेशन के लिए आता है, तो जैसे पका हुआ घड़ा तो बन ही चुका होता है ना। जो स्कूल में आ रहा है तो चलो अभी मिट्टी है, क्ले है, थोड़ा मोल्ड किया जा सकता है, और वहां पे ये एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सब चीजें बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ज्यादा मैटर करती हैं। बट जब हायर एजुकेशन में बच्चा आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारे पास स्कोप कम होता है, और फिर हर तरह का बच्चा है, हर तरह का पेरेंट है। वी कैन नॉट हैव अ सिंगल स्टिक फॉर एवरी कैरेट थ्योरी टाइप कि जो आज रोल मैंने अपने लिए बना दिया है या अपने इंस्टीट्यूट के लिए वही JBIT में चल रहा है या वही NIT में चल रहा है, या एक रोल जो NIT में बना है वो XYZ हर बच्चे के लिए चल रहा है। आई एग्री टू दैट। बट इसके साथ हमारा एक व्यू पॉइंट और है, सीखने की, चेंज होने की फर्स्ट ऑफ ऑल कोई उम्र नहीं है। ठीक है, आप और मैं भी जब हम टीचिंग की स्टार्टिंग में आए थे, अगर 25 साल, मुझे 25 साल हो गए, 30 साल, ठीक है, तो एज अ टीचर मैं क्या सोचती थी, कैसे करती थी, वॉज टोटली डिफरेंट जो मैं अब एज अ टीचर हूँ। उस समय मैं एज अ टीचर होती थी, मुझे सिर्फ पढ़ाने, क्लासेस, ये वो ये करना है,
बहुत अच्छा। अब मेरा एटीट्यूड होता है पढ़ा तो मैं लूंगी, मेरे को बच्चे का थोड़ा सा परसेप्शन समझना है, बच्चे को ये देखना है, मीन्स चेंज है विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट? उस चीज को छोड़ो। सो नाउ व्हेन द स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है, हो सकता है वो कुछ ऐसी बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ ऑलरेडी वो खूब वेल डेवलप्ड है, जहाँ पेरेंट्स बड़े सजग थे, पेरेंट्स ने ध्यान दिया, पेरेंट्स ने अपने बच्चे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से देखा, पढ़ाई पे भी और उसमें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बैकग्राउंड ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं जहाँ इन चीजों को बाय नेचर वो समझ रहे हो, अलग बात है, लेकिन माँ बाप एक्स्ट्रा एफर्ट या उनकी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट देगी कि क्या सही है क्या गलत है या कैसे बिहेव करना है या क्या करना है, ठीक है? स्पेशली अगर आप एनआईटी से ही हैं सर? जी मैम। हाँ, तो आपके पास तो बच्चा जो है, जैसे प्राइवेट में तो फिर भी कई जो बड़े प्राइवेट है, बड़े अच्छे घरों से आते हैं, पैसे वालों से आते हैं। जो हमारे पास, मैं एनआईटी हमीरपुर में, आई हैव बीन द फैकल्टी फॉर 9 years, सो वहाँ पे तो आपके पास हर तरह का बच्चा आता है, रूरल बैकग्राउंड का भी आता है, अच्छे वाला भी आता है, सब मतलब पका पकाया बच्चा नहीं आता है। तो जब हमारे पास वो बच्चा आ रहा है तो हम मे बी उसकी जो फाउंडेशन तो ऑलरेडी लेड हो चुकी है, बट अगर if we are able to make even the delta of a difference in his thought process, in his learning, अब और दूसरा मतलब वो भी सफिशिएंट है, ठीक है? और कुछ चीजें वो अपने आप सीखता है कि अगर वो, आजकल हर एक के एक एक दो दो बच्चे होते हैं, हर माँ बाप चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है कैसे भी है, कोशिश करता है कि अपने बच्चे को सब कुछ दे। और बच्चे को भी, अगर जो सिंगल चाइल्ड है, वो उनमें वो आदत नहीं डेवलप हुई होती कि वो शेयर करें, या जॉइंट फैमिलीज कम है, बहुत सारे हमारा सोसाइटल चेंजेस आ गए हैं, जो हमारा बच्चा जब हमारे पास आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है। पहले जॉइंट फैमिली में रहना, 5-6 बच्चे हैं इकट्ठे सीख रहे हैं, दादी नानी को सिखा रही हैं, सोसाइटी में आपस में मेल जोल था, परिवार वाले बढ़ते थे, तो अपने आप बच्चा सीखता था चैलेंज, कैसे डिसीजन लेना है क्या है। अब क्या है, हम इतना बच्चे को ऐसे कोकून की तरह रखते हैं, स्कूल पढ़ो, ये करो वो करो, ये एम करो, यहाँ जाओ वो जाओ, तो वो बाकी जो उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है वो कईयों की पूरी हो जाती है, कईयों की कम। कहाँ रुकना है भाई, बोला कि रुकना है। तो जब हमारे पास बच्चा डिग्री में आ रहा है तो आई एग्री विद यू कि हम पूरा उसके अंदर चेंजेस एकदम से नहीं ला सकते हैं और सब में नहीं ला सकते हैं, बट कुछ चेंजेस, कुछ जो लाइफ के स्किल्स और जो एटीट्यूड है वो बच्चा इन्हीं दौरान सीखता है। तो और उसके लिए आई डोंट एग्री कि हमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। अभी जैसे एआईसीटी ने शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ एनईपी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सब टीचर्स भी उसकी, या इंडियन नॉलेज सिस्टम, सब टीचर्स उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो आपके कॉलेज से हुए हैं कि नहीं, बट एआईसीटी से जो कॉलेजेस हैं उनको तो वो जबरदस्ती करा रहे हैं और बच्चों को वो पढ़ा भी रहे हैं। अब जो मॉडल करिकुलम है उसमें यूएचवी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, उसमें ये करना जरूरी है। सो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद इट, बट जो चीजें, अगर अब जो बच्चा क्लास में, अगर ये उसको पंक्चुअलिटी सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो देखेगा कि टीचर उसी क्लास पे आ रहा है, उसने कहा मैं इस समय आपका पेपर चेक करके दे दूंगा, आप आके लीजिए, उसने कहा कि मैं आपका ये चीज इस हिसाब से चलेगी, वो लीजिए, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज लर्निंग के अच्छा पंक्चुअलिटी का ये मायना है, ये मैटर करता है। अगर उसको क्लास, अगर वो एक टीम का पार्ट है, आपने प्रोजेक्ट वर्क दिया उसको, 4 लोग हैं करने वाले, उसमें उसने खुद सीखना है कि चाहे मेरे साथ वाले के साथ वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको प्यार से कैसे समझाना है या उसको कैसे डील करना है, या मैं पीछे रह गया, मींस ये सब क्वालिटीज जो है ना सर, ये सब्जेक्ट के तौर से नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में अगर वैसा माहौल हो, इंस्टीट्यूट में वो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हों जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी को हम बेटर कर सकें, राइट? सो आई टोटली एग्री कि सब कुछ हम नए तरीके से कॉलेज वाला नहीं सिखा सकता है। स्कूल में जो चेंजेस बच्चे में आ सकते हैं, उसकी जो ह्यूमन मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, वो कॉलेज में उतना नहीं आ सकता है, बट फिर भी काफी फर्क पड़ता है। और हम अपना एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हम जब कॉलेज में गए थे और जो हम 4 साल में कॉलेज से बाहर निकले, काफी चीजें हम लोग सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन,
और उसके लिए कोई सब्जेक्ट होना, कंटेंट्स होना जरूरी नहीं होता है। तो वही एनपी जो है थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चे की ग्रोथ को डिफरेंट तरीके से करें। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, कॉग्निटिव लेवल को तो हम हैंडल कर ही रहे हैं इतने टाइम से, राइट? Ma'am, I understand your point that though the student is grown up when he or she is coming to the college, undergraduate or PG level or PhD level, but still there is scope, that the Yeah. teachers can slightly modify or influence at least to for Yes. better being of the student. I mean, Ex- and as a teacher we cannot say. Now, yes. actually, I have another query, if you permit. Yes, sir. Ma'am, actually, that as you said that this NEP and multi-entry, multi-exit, हम्म we had a well-framed curriculum, that in मैं which उस पे आती हूँ सर, उस पे आती हूँ। okay, थोड़ा सा उसका कवर बेस कर दूं ताकि बाकी लोग जिनको those who are not aware, they can also get connected to what sure, you are ma'am. talking. I Sure. got your point, but I'll come to that definitely. Okay, so we had good discussions and I think काफी चीजें जो हैं हमारा thought process पे what we are thinking and talking about is clear to all. So coming back to this, NP, as I said, is talking about overhauling the education ecosystem. क्योंकि वो education policy है, obviously it will talk about education. That is nothing to be surprised element. But NEP is not only thinking in terms of as an education policy, but it is also thinking in terms of the entire ecosystem. कि अगर मैं चाह रही हूँ कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, व्हाट शुड बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स, और अगर स्टूडेंट्स भी सपोर्ट सिस्टम भी है, हाउ द फैकल्टी इज कैपेबल एंड मोटिवेटेड, राइट? वही क्वेश्चन आएगा कि पढ़ाएं के पहले हम इनको बच्चा वो करें. So we have to have motivated faculty. So if faculty is not capable or faculty is not upskilled, how to go for the teacher education or the faculty upskillment, and not only to teacher student relation but also the governance part, how the leadership has to be taken care of. Totally centralized होना है या कुछ ऑटोनॉमी होनी है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी है, क्या स्किल्स, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, हाई रिसर्च को कैसे करना है, राइट? और टेक्नोलॉजी. सो totally major thrust areas are 10 for especially for higher education. But actually if you talk about NEP 2020, although it is just a 67 page document, but for every section now you have entire document attached with it. और वो बात कर रहा है overall development of the student, holistic education rather than only the academic education, right? And why it is important, important to hai hi, but these are the supporting database that the UN population data has shown that by 2027, almost more than 18% of the global labor force will be from India. So labor force does not mean only the labor part, but the entire working class of the entire world will be 18% will be Indian. राइट? इट मीन्स अगर पूरे वर्ल्ड में हमारा यंग बच्चा है और वर्किंग क्लास है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एजुकेशन. एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, राइट? तभी वो सक्सेसफुल होगा और पूरे वर्ल्ड में उसकी रिक्वायरमेंट होगी. अनदर एस्पेक्ट इज दैट इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री. अब हम मतलब पॉपुलेशन वाइज तो बढ़ ही गए हैं, बट यंगेस्ट कंट्री तो है ही डिफाइन कि half of its population is below 25 and 2/3 is younger than 35. So you see this age bracket के half of the population is less than 25, और यही टाइम है जब सबसे ज्यादा बच्चे की एजुकेशन भी होती है, बच्चे की डेवलपमेंट भी होती है, पर्सनैलिटी भी, एटीट्यूड भी, एप्टीट्यूड भी, सब जो है वो इसी एज ब्रैकेट में है. सो दैट इज वाई वी नाउ. और दूसरी चीज क्या है कि हम पॉपुलेशन को रोते रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रही है व्हाटसोएवर, बट इट इज बेटर नाउ टू
take the advantage of this demographic dividend कि जो है उसको use करो, right? So that is why education is playing a very very pivotal role. जो पहले भी था वही, बट मैंने कहा कि फोकस तब डिफरेंट था, अब फोकस एक ग्लोबल लेवल पे भी है कि इंडिया इज बिकमिंग ए नॉलेज इकोनॉमी एंड एजुकेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. क्योंकि अगर नॉलेज है, एजुकेशन है, तो पर्सनल डेवलपमेंट, फैमिली की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट और फिर नेशन की डेवलपमेंट, they all are dependent upon the education. And that is why so much focus, so much time or so much changes are now being brought in the education system, right? So now coming back to this, we have so many other things about the NEP 2020, but majorly first I want to talk about curriculum restructuring because that will affect we teachers के और बाकी के गवर्नेंस क्या है, एक्रेडिटेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें ऊपर लेवल पे कुछ कुछ होंगी, बट जो मेन चीज अफेक्ट करेगी हम फैकल्टी मेंबर्स को, दैट इज व्हाट टू टीच. अगेन थ्री थिंग्स, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू इवेल्युएट. ये तीनों चीजें सीधा फैकल्टी एंड स्टूडेंट के ऊपर अफेक्ट करती हैं जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, rather than some other parameters. So my focus is on the curriculum restructuring which we are headed to, right? Yeah, so this is same thing which I was talking about, the knowledge, skill and the attitude. I won't go into this detail now. Okay, so curriculum, पूरे 5 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि curriculum is the main key driver, and the main issues now which the curriculum changes in the curriculum which NEP expect is again the same story, that we want to develop we want the holistic development of the students, not only the cognitive capabilities, but as I already mentioned, the behavioral component, the attitude part, the skill part, that has to be also taken care by our curriculum and by our education system. And how we are going to do that, that is we have to discuss. Another aspect which NEP is talking about is pride in India, owing our country. See, I have seen this difference कि हमारा, अगर हम अपने रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हमारा रेलवे स्टेशन उतना साफ और अच्छा क्यों नहीं होता है जो फॉरेन कंट्री में है? ओके, या एक क्वेश्चन तो ये है, हम कहेंगे पॉपुलेशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भीड़ बहुत है. दूसरी, अगर वो हम कहें और हमारे लोगों को ये आदत नहीं है. दूसरी चीज है, हमारा इंडियन एयरपोर्ट से जब लैंड करता है यूएस के एयरपोर्ट पे, वहां पे क्यों एकदम से साफ सुथरी की उसकी भाषा जल जाती है? देखा आप लोगों ने? अगर हमारे कंट्री में कोई बंदा है, अगर उसको डस्टबिन मिला तो ठीक है, एक बड़ा पढ़ा लिखा है वो डाल देगा, नहीं तो कई बार हम वहीं डाल देंगे बेंच के पास. बट इफ आई लैंड, अब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरे तो हम ढूंढना शुरू करेंगे, वेयर इज द ट्रैश, वेयर इज द बॉक्स, बिकॉज वी डू नॉट, कल्चर के अलावा वी डू नॉट ओ अवर कंट्री. मेरे घर की सफाई होके झाड़ू लग के मैं अपने घर को तो मैं ओ कर रही हूँ, लेकिन जो कूड़ा सफाई वाला है वो घर के बाहर निकाल के गली में कर दिया या दूसरे के घर के आगे कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट ओइंग माई सोसाइटी. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कि वी डू नॉट ओ और वी डू नॉट फील कनेक्टेड टू आवर कंट्री. हम गलतियां तो निकाल देंगे, हमारे लिए क्या कर रहा है, कितना पैसा है, इतना इनकम टैक्स है, ये है, और बाहर की कंट्री में जाके हम उनकी हर बुराई को भी हम उसको वाह 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 करके और अच्छाई करके करना चाहते हैं. So this step is being taken by the NEP के teach our kids, our students, our children that what culture, what diversity, what ancient traditions we have, and we should be proud of for what we had in our culture. So that is why some steps are being taken. जो सब्जेक्ट एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का है, और नॉट ओनली एज अ सब्जेक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ
जरूर ये चीजें सब्जेक्ट से नहीं पढ़ाई जा सकती हैं कुछ लेवल तक। वो वही बात है, आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का सब्जेक्ट बच्चे को दे रहे हैं और वो चीटिंग करके पास हो रहा है, हो गया जितने मर्जी आपने चैप्टर पढ़ा लिए, राइट? सो दीज आर सर्टेन aspects which NP is focusing on beyond the education, राइट? और जब मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी की हम बात कर रहे हैं, सो एज आई स्टार्टेड फ्रॉम द इन द बिगनिंग के इशू इज कि हमारे अभी बहुत स्ट्रिंजेंट कैटेगरीज हैं कि अगर मैंने पहले तो ये डिसीजन लेना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, ये बच्चे की डिसीजन नहीं होता है ज्यादा, अब चेंजेस आ गए हैं। मेरे टाइम में आई टेल यू, मुझे मेरे पेरेंट्स ने, और जबकि मेरे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक पर्ची डाली और बोला कि आ जाओ उठाओ। मुझे लगा कुछ खरीद रहे होंगे तो मेरे से उठवाते थे कि माता के आगे जाके एक पर्ची उठा ले। तो मुझे बुलाया कि आ जाओ ये पर्ची उठा ले, और मैंने पर्ची उठाई और उसमें निकला मैथ्स। सो बाद में पता चला कि पर्ची किसकी थी, कि मैंने मैथ्स पढ़ना है, नॉन मेडिकल पढ़ना है, कि मैंने बायोलॉजी पढ़ना है। माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम ए डॉक्टर एंड माई फादर वॉन्टेड टू मी टू बिकम अ मैथ्स टीचर या जो भी इंजीनियर। सो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि बेटा आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मुझे बुलाया गया। और लकीली मैथ्स, अगर बायोलॉजी निकल आती तो मैं एक फेलियर होती, मैथ्स निकल आया तो चलो मेरे इंटरेस्ट का था एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, राइट? सो जो वो स्ट्रिंजेंट है और जो चॉइस नहीं है, जो बच्चे से पूछा नहीं जाता है, उस समय ठीक है बच्चे की उतनी मेंटल लेवल मेच्योरिटी नहीं थी। बट आजकल के जो जनरेशन जी वाले, अल्फा वाले ये बच्चे हैं, ये तो शुरू से इनके अंदर क्लैरिटी है कि क्या बनना है, कैसे करना है। पर वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर आपने बन गए आप इंजीनियर, तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुछ प्रोग्रामिंग का पढ़ ले या बायोलॉजी पढ़ ले या साइकोलॉजी पढ़ ले। सो दैट aspect is also being catered to कि टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास, त्रिपाठी जी फिर पूछेंगे कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं अपने सिलेबस को। आई विल कम टू दैट आल्सो, बट सम स्किल्स, some education should be the part of the mainstream also to develop those attitudes, not the entire one, but कुछ कुछ पार्ट हम डाल सकते हैं ताकि जो बच्चा करना चाहे। अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में मैं एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई एम ए क्लासिकल डांसर, आई वांट टू हैव वन सब्जेक्ट ऑफ कथक डांस। आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, आई वांट टू हैव वन सब्जेक्ट ऑफ फोटोग्राफी, इट्स ओके। बट अगर मैं वैसी हूं कि मैं कंप्यूटर हूं, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ही करनी है, तो ठीक है, नोबडी इज फोर्सिंग यू कि जबरदस्ती तुमको एक सब्जेक्ट डांस का लेना है या एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट का लेना है, राइट? सो देयर शुड बी, अभी तक यही एनईपी की जब मैं बात करने जाती हूँ करिकुलम की, तो बहुत लोगों का यही दिमाग में होता है कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं, हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो द इशू इज वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट फोर्सिंग कि आपको थिएटर करना ही करना है, आपको फिलॉसफी पढ़ना ही पढ़ना है। बट अगर आप 100 में से कोई एक भी पढ़ना चाहता है तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए। नहीं पढ़ना चाहते आप, अपनी कंप्यूटर पूरी पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ो, आप कंप्यूटर के साथ। लेकिन अगर साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर। ओके, सो अभी क्या है, थोड़ा सा तो हमारा रहता ही है कि जो बिकता है वही उसी की, मतलब डिमांड एंड सप्लाई है। तो अगर कंप्यूटर और आईटी में नौकरी है तो हर बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन वी डू नॉट हैव वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, किसका मार्क्स है, किसको मिल रहा है। तो कोई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में नहीं कर रहा है, बीएससी मैथ्स कर रहा है जिसका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ है, राइट? कोई सिर्फ साइकोलॉजी कर रहा है। सो द कॉन्सेप्ट इज नाउ दैट यू कैन अर्न 2 degrees together, major and minor. So if I am an electronics engineer, I want my minor in physics. So the subject combination I can choose, the number of credits I can choose, which will give me a major degree in the main subject, जिसमें मेरे maximum credits होंगे, and a minor in the other subject. Abhi in Thapar, I was the BUS member
वहां we started and we designed a curriculum for major in computer science and minor in psychology. और शुरू में हम यही डर रहे थे कि कौन लेगा, कोई क्यों साइकोलॉजी और कंप्यूटर पढ़ेगा, बट बच्चे ने भी ली। और जो जॉब के लिए जो प्लेसमेंट कंपनी थी, दोज हु आर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, दे opted for the students those who had major in computer and minor in psychology, because they thought कि जब AI बनाना है तो वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बच्चे को पहले से नॉलेज है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, तो दैट इज अ बेटर चॉइस rather than a student having only a degree in computer science. So this flexible, again I am saying, nobody is forcing a student जो सिर्फ एक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की लेना चाहता है, लेकिन जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंप्यूटिंग लेना चाहता है, आर्किटेक्ट के साथ सिविल लेना चाहता है, केमिस्ट्री के साथ फार्मेसी पढ़ना चाहता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो उसको प्रोफेशनली भी हेल्प करेंगे, उसके लिए उसके पास चॉइस होनी चाहिए, राइट? सो डबल मेजर एंड आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर. सो वी हैव द बट यस, इट डज नॉट मीन कि आप मतलब ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स और पढ़ते रहो सारा कंप्यूटर, राइट? तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स है कि अगर आपको सिंगल मेजर लेना है तो कितने क्रेडिट्स, मेजर एंड माइनर लेना है तो कितना मैक्सिमम मिनिमम क्रेडिट्स, डबल मेजर. सो rules and regulations are properly formulated while providing this flexibility, right? So any questions? Madam, I'm Dr. Sahu from NIT Raipur. Yes sir, yes sir, please. Madam, in some of the lectures, I think 2-3 days before, someone is calling about the general engineering program. Like NEP also talk about the general engineering program other than like a specialized one. Like specialization can go in after 3 years or something. Is it in plan or can you give some idea about that? वो सर वो that is for the वो जो ये आर्ट्स वाली है ना, जहाँ पे 3 ईयर होता है, 4 ईयर वाला है, वो उनके लिए है. जो हमारी बीटेक है, इट इज ऑलरेडी 4 ईयर प्रोग्राम और उसको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा करने का है, बट वो नहीं है सर. वो जो बीए बीकॉम है ना सर, जो 3 इयर्स प्रोग्राम है, एंड द 4th ईयर इफ दे वांट टू गो फॉर द स्पेशलाइजेशन और दे, वो उनके लिए है सर. Okay. Ma'am, related to major minor means how much of a percentage should be allocated for the minor degree? Sir, 12 credits are to be given to the minor. 40%. See, Like 40. we have given example of a computer and psychology. If some student earn 12 credit on psychology, so he will be given a degree minor in Yes, psychology. 40% major, 12 अगर वो 12 credits उसका है जिसका 160 की 160 का आपका बीटेक का डिग्री है ना सर? Oh yeah, model curriculum ICT. मॉडल करिकुलम इज 160, तो 160 में आपके 10 नहीं, फिर 12 नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे सर, उससे ज्यादा है फिर. Because some university I saw around 18 भी है कुछ. हाँ, 40 मीन्स सर 10% क्रेडिट तो ये उसके हैं जो ह्यूमन वैल्यूज और ये सारे जो एक्स्ट्रा वाले हैं. 50% तो जो मेजर और माइनर है उसमें 40% मेजर के हैं और मेरे ख्याल 30% आई विल शो यू, ये है मेरे पास कहीं पे जो एग्जैक्ट ये है सर. देखिए, तो जिनका 4 ईयर कोर्स है, अगर मेजर है 160 में तो 80 क्रेडिट्स हो गए ना, सो इट इज 50% क्रेडिट्स, और माइनर में इट इज 32 क्रेडिट्स, तो कितने 20% क्रेडिट्स हो गए. ये 50% goes to major, I think 50% goes to major, और अगर डबल मेजर है तो 40% दूसरे के हैं और माइनर के लिए 20% है फिर सर. ओके, या बिकॉज ये जो बाकी सारे हैं ना सर, ये स्किल एनहांसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट, ये भी तो 20-30% ले ही रहे हैं सर. Yes, ma'am. What about the first year? Like, if you have implemented some of the concept in any university, have you seen that, like, how they have framed first year? Like earlier, we have convention method, we have physics, chemistry, maths, and all those things in the first year. So, like,
Electronics, if we talk about electronics, whether they are teaching electronic courses from the first year itself? Yes sir, not all the courses wo okay, let me come back to that because see not all the courses, because जो multiple entry multiple exit, okay, let me come to that because I think ये पता ही है. सो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को कि ही मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की, राइट. सो उसमें क्या हो रहा है, या so the student is being given a flexibility कि he can move out of first year, right, and he can come back also and rejoin at second year. ये I think most of the institute में start कर दिया है. बट जो इसकी एक्चुअली स्टोरी है ना सर, जो इसका एक्चुअली वो है, इससे करिकुलम को चेंज करना चाहिए. बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज व्हेन द स्टूडेंट इज अलाउड टू लीव आफ्टर 1 year, we are giving him a certificate of certain competency which will make him eligible to earn livelihood. That is, he can get a job. चाहे ये अभी भी चैलेंज है कि इंडस्ट्री में जब हमारे पूरे 4 साल वाले बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं तो उसको फर्स्ट ईयर के बाद कौन नौकरी देगा, राइट. बट वो धीरे धीरे आ रहा है, अप्रेंटिसशिप का भी कॉन्सेप्ट है और भी है. सो व्हाट आई वांट टू फिगर इट आउट इज कि आफ्टर फर्स्ट ईयर इफ ही इज लीविंग, सो वी आर गिविंग हिम कि इसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसी है जिससे ये कुछ लेवल का काम कर सकता है, नॉट एज एन इंजीनियर बट सब लेवल जो हम NSQF या NCVT बता रहा है. आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. एंड आफ्टर सेकेंड ईयर इफ ही इज लिविंग, ही इज टू गिव अ डिप्लोमा जिसके बेसिस पे उसको नौकरी मिल सकती है, और आफ्टर थर्ड ईयर वो बैचलर्स ले रहा है. अब कॉलेज में क्या हो रहा है, पीपल आर चेंजिंग दिस. ओके, वी हैव गिवन द मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कि बच्चा कैन लीव एंड कैन कम. इट इज नॉट ओनली द वो जो सिर्फ मतलब वो क्लरिकल उस पॉइंट पे कि अच्छा जा रहा है आ रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड रख रहे हो. नो, द करिकुलम हैज टू बी मॉडिफाइड कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद जा रहा है एंड ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, सो फर्स्ट ईयर के उसमें कुछ चेंजेस ऐसे होने चाहिए, कुछ सब्जेक्ट वो होने चाहिए which will make him competent enough to get a job. For example, I take electrical engineering, right? So अभी तक क्या है, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, IT पढ़ाते हो, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कराते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कराते हो. यस डॉक्टर साहू? यस मैम, यस. यही आपका फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का तो होता है. एक इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स, एक IT या CS से रिलेटेड, एक आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एक मैथ्स, एक फिजिक्स. कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ाते होंगे, राइट. अगले सेमेस्टर में भी एक आध सब्जेक्ट और फिर इन्हीं का पार्ट 2, राइट. नाउ यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू मॉडिफाई कि अब इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, अगर वो पहले साल के बाद जा रहा है तो उसको नौकरी चाहिए. कम से कम उसको एक और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग करना, फ्यूज लगाना, डिफॉल्ट चेक करना, कुछ तो उसको KCL केवल मतलब कुछ तो पता होना चाहिए. मैम उसके लिए कुछ मिनिमम क्रेडिट्स आइडेंटिफाई किए क्या? यस यस यस. जैसे आई थिंक पर ईयर विल हैव 40 क्रेडिट्स, तो 40 क्रेडिट्स पे कुछ यस. मैं अभी लाती हूँ उस पे. ये कहाँ गया? यस, ये है. आपको अगर फर्स्ट ईयर 40 क्रेडिट्स लेना है, ओके, सो इट मींस बच्चा ज्यादा ले सकता है क्योंकि NEP इज टॉकिंग अबाउट कि वो मूक से 4 क्रेडिट्स और ले ले, वो किसी और कॉलेज से ले ले, वो 48 ले ले एक साल में. बट अगर उसको लीव करना है और उसको सर्टिफिकेट चाहिए, सो मिनिमम 40 क्रेडिट्स. और उस 40 क्रेडिट्स में भी इट इज नाउ डिफाइंड कि एक कोर्स वोकेशनल का करना जरूरी है, 4 कोर पेपर्स इन दैट डिसिप्लिन, 2 ability enhancement and 2 skill enhancement courses. So क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए they have now defined the brought the courses in a uniform bucket kind of thing. कि कुछ कोर्सेज है फाउंडेशन, जैसे मैथ्स फिजिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, वो आपके फाउंडेशन कोर्सेज हैं, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है आपके फाउंडेशन कोर्सेज हैं. कुछ कोर्सेज हैं आपके जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक है. अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका कम से कम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है सब्जेक्ट,
वो आपका उसका एक कोर्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका कोर्स है, राइट? सो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। देन यू हैव एबिलिटी एनहांसमेंट, चाहे वो आप प्रोग्रामिंग करिए, चाहे आप लैब करिए, उसमें वो आपकी स्किल पार्ट को एनहांस करने के लिए, सॉरी, स्किल एनहांसमेंट इज द अदर थिंग। देन यू हैव वैल्यू एडिशन, ये जो ह्यूमन वैल्यूज, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ये सब चीजें। सो दीज आर नाउ डिफाइंड। सो ये किस लिए है मेजर, कि अब अगर, क्योंकि एनएपी ऑल्सो सेज कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर एनआईटी रायपुर से किया, मैं सेकेंड ईयर एनआई हमीरपुर से कर सकती हूँ, मैं थर्ड ईयर एनआईटी किसी और दिल्ली से कर सकती हूँ। सो व्हेन अ स्टूडेंट इज गिवन दैट फ्लेक्सिबिलिटी, सो इट मींस यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? अब मैंने अपने सब्जेक्ट में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में रखा है, आपने फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स रखा है, मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, आपने डिजिटल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी रखा है। सो लेकिन मोर और लेस कंटेंट्स या उसके आउटकम्स, बेसिकली नाउ नॉट ओनली कंटेंट्स आउट, अगर मेरे बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे डिजाइनिंग पार्ट और वो पता है, तो वो उसका नाम मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रखूं, या मैं उसका नाम डिजाइन रखूं, या मैं उसका कुछ भी रखूं, अब आउटकम्स आर सिमिलर, contents are similar and they come in the bracket of the core discipline subject, तो फिर बच्चा चाहे एनआईटी रायपुर से जा रहा है, चाहे एनआईटी दिल्ली से जा रहा है, उसकी कुछ यूनिफॉर्मिटी मैपिंग हो सकती है, राइट? मैम ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट के केस में, अब जैसे आपने एग्जांपल दिया एनआईटी रायपुर से एनआईटी हमीरपुर चला गया सेकेंड ईयर या भी मे बी थर्ड ईयर में, तो उसको जो डिग्री जो फाइनल वो अवेल करेगा वो कैसे मतलब रहेगा उनका सिस्टम ये कुछ? सर ये अभी एक क्लैरिटी नहीं है। उस चीज की तो क्लैरिटी है कि अगर वो एनआईटी रायपुर में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो उसके बाद कुछ कोर्सेज मतलब है एनआईटी रायपुर में रजिस्टर्ड, और कुछ कोर्सेज वो एनआईटी हमीरपुर से ले रहा है, 2 कोर्सेज, एक कोर्स उसने थर्ड ईयर में उसने आईआईटी दिल्ली से ले लिया, 2 कोर्स कहीं और से ले लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी देता है, बट उसमें द स्ट्रिंजेंट दिस नॉर्म इज कि जो बच्चा जहां रजिस्टर्ड है, जो अवार्ड गिविंग कॉलेज है, वहां से बच्चे को एटलीस्ट 60% क्रेडिट्स वहीं से करने पड़ेंगे, बाकी 40 क्रेडिट्स वो कहीं से भी कर सकता है। तो ये नॉर्म तो है, लेकिन इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है कि अगर इंटर कॉलेज, इफ आई शो यू, या कि अगर इंटर कॉलेज मूवमेंट है जो वर्टिकल, मतलब वो मेरे पास शायद, या कि अगर वो अपने ही कॉलेज में अदर से ले रहा है, तो रूल रेगुलेशन क्लियर हो गए कि 60% क्रेडिट्स अपने से लेगा, 40 कहीं से ले ले तो डिग्री उसको उसी से मिलेगी जहां उसने एडमिशन लिया है और जो उसका अवार्ड गिविंग कॉलेज है। लेकिन इस केस में जो आप कह रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये अभी प्रॉपरली इसके नॉर्म्स नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें इश्यूज आएंगे, फीस कौन लेगा, फाइनल डिग्री कौन देगा, ये इश्यूज हैं, बट ये अभी क्लैरिफाइड नहीं है सर। यस मैम, तो 60% मींस आप कह रहे हैं कि अगर सेम इंस्टीट्यूट से किया है और बाकी 40 हाँ, अदर से किए हैं, तो 60% जो मेजर होगा वहां से ही वहीं कैन से क्लेम डिग्री। द डिग्री, है हाँ, ना? मैं अब जैसे अच्छा मैम, 60% इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट का। तो एक्चुअली जब ये चल रहा था एनआईटी काउंसिल वगैरह, क्योंकि एनआईटीज बहुत सारे हैं, तो इसमें भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि डिग्री कहाँ से मिलेगी। तो एक ट्रिपल आईटी का मैंने सुना था, जो एक प्रोफेसर हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि पूरे इंडिया में 4 या 5 ट्रिपल आईटीज हैं, तो उन्होंने उनकी ट्रिपल आईटी की बॉडी ने एक ऐसा फ्रेमवर्क डिसीजन ले बनाया है, हाँ डिसीजन लिया है कि अगर ये 5 ट्रिपल आईटी के अंदर वही जो बताया 60% अगर कहीं से मेजर हो जाता है और बाकी कहीं से ऑप्ट कर लेते हैं, तो वो ऐसे डिग्री दे देंगे। इवन मेरे ख्याल से उसमें कुछ प्रोविजन भी है कि वो फाइनल ईयर जो है, जो फाइनल ईयर जो मतलब जहां से अवार्डिंग डिग्री लेगा वो ट्रिपल आईटी से होना चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने क्लॉज बनाए हुए हैं। वो सर, अगर अरे वो इट इज ट्रिपल ओनली आई तो लिमिटेड टू ट्रिपल आईटी ट्रिपल ओनली। आई, वही मैं कह रही हूँ, हाँ। अगर ट्रिपल आईटी कंसोर्टियम ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया होगा तो हाँ हाँ मैम। वो फिर वो कर सकते हैं, बट अदरवाइज तो थोड़ा ओपन ज्यादा ही वो हो जाएगा ना सर। अब मैंने एडमिशन ले लिया जेबीआईटी से, और मैं लास्ट में ऐसा प्लान करूं कि सब जगह करके थर्ड ईयर में एनआईटी रायपुर से कर लूं, फोर्थ ईयर,
तो मुझे डिग्री हाँ। एनआईटी की मिल जाएगी, और वो बच्चा जो शुरू से एनआईटी में पढ़ रहा है। हाँ, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं मैम। और मैम Issues। थोड़ा एबीसी के बारे में बताएं कि जैसे क्रेडिट जो अर्न कर रहा है वो एबीसी के थ्रू उसके डिग्री से कैसे लिंक हो सकता है? वो मैं मतलब जैसे बताती फर्स्ट ईयर में एबीसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने हूँ। क्रेडिट अर्न कर लिए, 2 साल हाँ, बाद आया तो फिर उसको कैसे बेनिफिट मैं मिलेगा बता उसका? मैं तो जिनको ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट जस्ट 2-3 लाइंस फॉर रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दोज हु माइट नॉट बी नोइंग। सो बेसिकली जब हम बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो किसी कॉलेज से पढ़ ले, ऑनलाइन पढ़ ले, मूक कोर्स कर ले, मेरे पास अगर उनको लग रहा है कि अच्छा मीनाक्षी मैडम है जी और वो अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, सेम सब्जेक्ट एनआईटी रायपुर में पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे वो सब्जेक्ट लेके और करना है। सो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी है वो कि बहुत सारी जगह से वो क्रेडिट्स अर्न कर सकता है। तो उसका ट्रैक रखने के लिए a digitally repository has been defined which is being called academic bank of credits। और हर इंस्टीट्यूट अब इट इज मैंडेटरी, पहले तो ये था कि एनआईआरएफ रैंकिंग धीरे धीरे चला, बट नाउ आई थिंक ऑल द इंस्टीट्यूट्स इट इज मैंडेटरी कि वो इसमें रजिस्टर करें। और हर बच्चे को एक यूनिक अपार आईडी दिया जाएगा, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। a unique 12 digit code will be allotted to every student, और वो उसी इंस्टीट्यूट से ही मार्क होगा। जैसे आप एनआईटी रायपुर में बच्चे ने किया, तो जब वो भरेगा तो उसका जो अपार आईडी है दैट विल बी रिलेटेड टू एनआईटी रायपुर। और वो जहां से भी करेगा, लेकिन पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको मूक कोर्स लिया, तो आपके यहाँ से उसको अप्रूवल होगा कि उसने मूक कोर्स लेना है, ये क्रेडिट। तो वो अपने आप से जो मूक का रिजल्ट आएगा उसके क्रेडिट्स उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। सो बच्चा एक्यूमुलेट करता रहेगा। अब अगर सपोज सेकेंड ईयर बाद बच्चा जाना चाहता है, उसने आपको एप्लीकेशन दी कि आई वांट टू लीव, सो आई माइट बी गिवन अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मुझे जाना है, तो अब आप उसके जो पार आईडी के हिसाब से यू कैन सी कि ओके 80 क्रेडिट्स इसने कर लिए कि नहीं करे। और 80 क्रेडिट्स में से अगर इसने 90 कर रखे हैं, 95 कर रखे हैं, उसमें से जो रिक्वायरमेंट है सेकेंड ईयर के बाद जाने की, ठीक है, कि इतने उसके कंपल्सरी कोर्सेज होने चाहिए, इतने उसके स्किल एनहेंसमेंट होने चाहिए, इतनी उसकी वोकेशनल, जैसे ये कि 10 पेपर उसके हैं, वोकेशनल है, एबिलिटी एनहेंसमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट है। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके करिकुलम के हिसाब से और उसके बकेट के हिसाब से उसने वो क्रेडिट्स ले रखे हैं, तो आप उसके 80 क्रेडिट्स रिडीम करके आप उसको डिप्लोमा दे के भेज सकते हैं। तो जो बाकी के उसके 90 जो 10 क्रेडिट रह गए वो उसकी किटी में रहेंगे, ताकि जब वो थर्ड ईयर में आए तो उन 10 से आगे उसका काउंटर चलेगा। ओके राइट, ओके। या सो ये मतलब जो हो, ये जो एबीसी रख रहे हैं वो यूजीसी उस पे हो रहा है, सब कुछ आपका ऑनलाइन है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है एक्स्ट्रा। बट क्योंकि बच्चा आपका है और अगर उसको मूवमेंट करनी है और जब फाइनली भी लीव करना है, नॉट इवन बिटवीन, फाइनली भी लीव करना है, तो एक बार आपको, लेकिन वो अब मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं किसी कॉलेज का वो जो अपार आईडी को मेंटेन कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये तो मैंने देखा है कि बच्चा जब रजिस्टर कर रहा है उसका अपार आईडी हो रहा है वो इंस्टीट्यूट से हो रहा है, और वो अपने आप इंडिविजुअली उसको नहीं हिला, ये नहीं, वो खुद नहीं एंटर करेगा कि मैंने मूव किया तो मेरे 4 कोर्सेज हो गए। नो, जब वो मूव पे रजिस्टर करेगा, अपना अपार आईडी डालेगा, तो मूव का जब रिजल्ट आएगा, उसके क्रेडिट्स आएंगे, वो बाय डिफॉल्ट उसके अपार आईडी में चले जाएंगे। सो बच्चे के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो खुद कर दे कि मैंने वैल्यू एडिट कर दिया, मैंने ये कर दिया, राइट। ओके मैम, आई थिंक वो आएगा फिर उसके बाद आई थिंक अप्रूव करेगा ना, इंस्टीट्यूट विल इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगा, यस। अप्रूव, देन इट क्योंकि विल बी आपने, एडेड। यस, आपने एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से बच्चा एक कोर्स मूक लेना चाहता है या एक कोर्स ऑनलाइन, अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है, बट जब आ जाएगी तो बच्चा कहेगा कि मैं आपसे, आपके सब्जेक्ट डीएसपी है, मैं एनआईटी रायपुर से नहीं पढ़ रहा, मैं यही कोर्स क्रेडिट 4 वाला क्रेडिट आईआईटी दिल्ली से ले रहा हूँ। तो पहले वो आपने अप्रूवल देंगे ना आप उसको, अभी राइट। वो, इसको खोल भी दे, गर्मी आ रही है, वो अप्रूवल होगा, और जब वो मार्क्स वहां से डलेंगे तब आप उसको वेरीफाई करेंगे आपका इंस्टीट्यूट, तब वो उसके उसमें एंटर होगा।
Okay. So I think we can have a tea break here, and it is well in Sure, time. madam. Sure. Yeah, and then at 11:45 we meet again.